Okay, good afternoon, dear students. Now we'll focus on the next operation on matrices, that is multiplication of two matrices, right? Fine. So, first of all, we'll concentrate on that part, that is how multiplication will do. Okay, so I'm taking this image from Google, no problem. So you just clear the concept of how we are going to implement, multiply the two matrices, right? Okay. So I'm asking one rule for it. So you have to tell me what exactly the rule of it. Okay. So first of all, these are the two matrices. That is first one is, that is matrix will be got 2 by 2 matrix. Okay. 2 by 3 and this is 3 by 2. Okay. 2 by 3 and 3 by 2. This type of matrix we have given. Okay. So how the multiplication will do? Just concentrate here. How the multiplication will do here? That is one important part. There is one rule of multiplication, but concentrate here. That is, this one is multiply by whom? इसको मल्टीप्लाई करेगा. मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कौन सा सिलेक्ट किया जाता है? वी आर सिलेक्टिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का हम लोग सिलेक्ट करेंगे कॉलम. ओके. यस. सो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम सिलेक्ट करेंगे. ओके. अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन करना है बट कैसे करते हैं? सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेक दिस वन will multiply by this 2. ओके. ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स हियर 1 into 2 plus this second value of first matrix, that is minus 2, is multiplied with second value of first column. Okay. मीन्स पहले रो सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम सिलेक्ट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विथ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉलम इनटू second matrix. Okay. So likewise, we are multiplying here 1 into 2 plus 2 minus 2 into 3. We are writing here plus this 1 is multiplying with this 1. Okay. So value plus 1 into 1. We are writing. Okay. So this is our first value we have given. That is first row and first matrix. Okay. Similarly, first column of second matrix. Fine. Similarly, we are taking the second uh, row here from first matrix, that is this one. Okay. Again we have to do the multiplication of it. Okay. But before that we have to complete this one completely. Okay. Similarly, again this first row multiply with second column of second matrix. Okay. So this one, ये one और ये one multiply होगा, then 1 into 1 plus this minus 2 is multiply with whom? This 2. Okay. Then plus this 1 is multiplied with this one. So likewise we have completed this one. Okay. So what we have, the final answer of what first row here, इसका आंसर क्या आया? -3 एंड इसका आंसर क्या आया? 1 into 1, that is 2, minus 2, that is 0, into 2 plus, according to that we have calculating all this value and the value will be what? -2 here. Okay, fine. Similarly, we have to do the multiplication of, अभी हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड रो सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का. अगेन दिस सेकेंड रो मल्टीप्लाइंग with first column of second matrix. Okay. Again this multiplication will do, this 2 is multiplying with this 2. Okay, 2 into 2. Then this 1 is multiplying with this 3. Okay, 1 into 3 plus this 3 will multiply with this 1. Likewise, we have calculated this value. Similarly, we have to multiply this whole row with second column of second matrix. Okay, so again this 2 into this 1 plus this 1 into 2 plus this 3 into 1. Okay, likewise we are doing this and finally we got the answer, that -3, then -2, 10 and 7. Okay, so likewise we have done the matrix multiplication here. Okay, fine. So my question is that what is the rule? What is the rule of a matrix multiplication? Here, that is, here one important point is that जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, there is one important rule is that first number of column
ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब ये पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ओके, यहाँ पे देखो 2 by 3 फर्स्ट मैट्रिक्स है एंड 3 by 2 सेकेंड मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है कि number of column of first matrix will be equal to number of rows of second matrix should be equal, तो ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, so I hope everyone is clear why this rule is given, because what is the logic behind it, because हम जो ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं फर्स्ट रो हम लोग सिलेक्ट करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करते हैं, तो जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखो ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस टू इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ वैल्यूज रोज में है उतने नंबर ऑफ वैल्यूज कॉलम में भी होने चाहिए, isn't it? That's why this rule is given. Fine. So that's why this type of matrix multiplication we can done. Okay, now we'll concentrate on coding part. हम लोग कोडिंग देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा क्या लॉजिक आ सकता है। ओके, नाउ theory everyone should clear now. Fine. Okay, everyone is clear the theoretical part of matrix multiplication. Now we'll start the implementation of multiplication of two matrices. That is multiplication of matrix A and B that we need to do. Okay, matrix A and B. Okay, station is there. Okay, fine. Okay, now we have to use for loop here. Again same, again we are revising m and n variable. Okay, हम लोग क्या कर रहे हैं, for m and n for loop use करो, क्योंकि multiplication जो करना है उसके लिए क्या जरूरी है, we have to use two for loop, for I equal to 0, yes, I is less than m, yes, and I plus plus. Okay, yes, enter it. Okay, before for loop, after cout, just we have to give the condition of, yes, give the condition of that rule, that is first matrix के number of columns similar with number of rows in second matrix. So if, so for n we have using m n, हम लोगों ने variable use किया था, n for number of rows and m for m number of columns. Yes, so first will be what, क्या condition आनी चाहिए यहाँ पे, yes, what will be the condition here, if n equal to what, yes, m आएगा क्या, n आएगा हमारा, yes, m equal to हमारा number of rows क्या है हमारे, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड मैट्रिक्स। ये देखो ऊपर का कोड जब देखते हैं तो नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने क्या स्टैंड किया, जस्ट गो अपर साइड m, just concentrate on number of rows and column that we have seen here. Yes, for matrix B के लिए क्या है, enter the number of rows in matrix B, that is P, and enter the number of columns in matrix Q. मतलब first second matrix का P आएगा for number of rows, agree, and अपर साइड में फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, यस, m यूज किया है, क्या यूज किया है कॉलम के लिए, n, यस, तो यहाँ पे इक्वल टू हम लोग क्या डालेंगे, इफ, यस, नंबर ऑफ रोज के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए क्या है, n है, राइट, तो हमारे कंडीशन में क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, वेरी गुड, एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, दैट इज p, वेरी गुड, तो ये इक्वल टू होगा तो ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप एवरीवन इज एग्री, फाइन एवरीवन। ये देखो यहाँ पे m इक्वल टू q आएगा कि p आएगा, p आना चाहिए ना, ये सब नो, क्योंकि p मीन्स नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ओके, वेरी गुड, जस्ट एंटर इट and start the if loop. Okay, we have to use this for loop inside the if loop.
fine. Okay, very good. Okay, then again we have to use now two for loops here. Yes, everyone agree with this? Write down there for, yes, for, again we have to use for j equal to 0, for keyword is required. That is in rounded bracket for j equal to 0, then j less than n and j plus plus. Okay, हमारा जो पहला वाला m है, okay, we are using for फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है यहाँ पे, कौन सा यूज किया है हम लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, दैट इज ओके एम एन, हमारा n नंबर ऑफ रोज के लिए और n नंबर ऑफ कॉलम के लिए. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, और i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, पहले हम लोगों ने m स्कैन किया था ना अपने इसमें, नंबर ऑफ रोज के लिए हम लोगों ने फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए n हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज के लिए किया है, तो यहाँ पे n करो और यहाँ पे m करो. Instead of m, we have to write n there in for loop. Yes, this is n and this is m, right? Very good. क्योंकि वो नंबर ऑफ रोज के हिसाब से, हमेशा याद रखो मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन पर्पस, ऑलवेज रिमेंबर दैट पहले रो फिक्स होता है देन कॉलम वैल्यू होता है. ओके, नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अगेन वी हैव टू रिकॉल द थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा, पहला रो सिलेक्ट होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का एंड सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट होता है. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हर इंडिविजुअल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग एडिशन भी करते हैं. That's why we have to use third for loop here. Just type there for in bracket integer k equal to 0, in k equal to 0. Then we have to check the condition for k is less than n. K is less than n and k plus plus. Okay. अभी ये हम लोगों ने क्यों यूज किया, ये आपके दिमाग में आया होगा. Everyone agree with this? Fine everyone. Okay. Fine. यहाँ पे वन इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट. ओके, अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे के को हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, क्योंकि के में एक्चुअल क्या करना है हम लोगों को, जितने टोटल नंबर ऑफ, जैसे देखो पहला रो सिलेक्ट करते हैं सबके इसके साथ मल्टीप्लाई होता है. ओके, इसके साथ जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है. ओके, तो पहले वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो मैं फिर से वो रिकॉल करती हूँ, चाहिए तो सो दैट आपको क्लियर होगा. पहले हम लोग कोड कंप्लीट करते हैं. जस्ट राइट इट डाउन इन फॉर लूप इन k इक्वल टू 0, k इज लेस देन, यहाँ पर इन ब्रैकेट इन फॉर लूप ऑफ k, k इज लेस देन, अपना टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए क्या है अपना m, n है ना, यहाँ पे m करो क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतना ही चलेगा. अगेन यहाँ पे कमेंट दो, फर्स्ट फॉर लूप n फॉर व्हाट, नंबर ऑफ रोज, n for number of rows in matrix, first matrix, n for number of rows, right? Okay, and second one is what, matrix A. Okay, the matrix A का जो variable है वो है. Then second one will be number of, m will be number of columns for matrix A. We are talking about the matrix A here, क्योंकि पहला matrix का row fix होता है, तो second matrix का column. Okay, fine. हाँ, तो यहाँ पे एक काम करना है. हाँ, यस, मैट्रिक्स है. एवरीवन इज क्लियर नाउ? फाइन. अभी ये के जो मैंने कहाँ से लिया है उसका मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ. पहले हम लोग कोड फिनिश करते हैं. इक्वल टू, ओके, एंटर करो वहाँ पर, एंटर इट. ओके, हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन स्टोर करनी है. तो टेक वन वेरिएबल दैट इज सम इक्वल टू सम प्लस SCM, सम प्लस ए ऑफ, अभी देखो ए ऑफ आई, दो आएंगे फॉर दो सब्सक्रिप्शन ए ऑफ आई, एंड सेकंड सब्सक्रिप्शन क्या आएगा वो हम लोग देखने वाले हैं. जस्ट टाइप स्क्वायर ब्रैकेट देयर, स्क्वायर ब्रैकेट, यस, इनटू आफ्टर दैट, नो
आफ्टर वो ब्लैंक ही रखना है हमें. यस. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई इट. देन मल्टीप्लाई. यस. उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल आना चाहिए. मल्टीप्लाई दैट्स बी ऑफ. यस. देन वहां पे ब्लैंक रखो. सेकेंड डायमेंशन दैट इज जे. सेमीकोलन. यस. जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है हम लोग स्टोर करने वाले हैं किसमें, सम में. फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा. सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस सम, के को खत्म करने के बाद एंटर देयर. आफ्टर के फिनिशिंग एंटर देयर. आफ्टर के क्लोजिंग curly bracket enter it. Yes, and write down mul mul. हमें सेकंड थर्ड डायमेंशन डिक्लेयर करना पड़ेगा. आई जे आई नो 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 इन डायमेंशन थर्ड हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा. मल आई जे इक्वल टू सम. ओके. सेमीकोलन. फाइन. एंड देन फिर से हमें सम को 0 क्यों करना है वो हम लोग देखने वाले हैं. पहले इतना बाद में देखो. सी आउट इन देयर ओनली. सी आउट देन इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, स्लैश की करके स्लैश की दैट इज. यस, वी हैव टू यूज दिस. जो जिसमें हम लोगों ने रिजल्ट स्टोर किया है उसको प्रिंट करना है. ओके. क्या करना पड़ेगा, मल आई जे को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है. दिस इज रिजल्टेंट योर मैट्रिक्स. यस. आफ्टर स्लैश टी यू हैव टू यूज द insertion operator there. Yes, again you have to do the display. Okay. Yes, mul ij mul ij. Agree everyone? Fine. So declare करो यहाँ पे if it is possible. Declare it integer mul ij. Or we are declaring in upper side. That is we have to take for multiplication purpose. Next, storage purpose, right? So for according to addition, ऐसे हमें क्या use करना पड़ेगा, comma mul 10 10. Whatever size you have, yes, 10 10. Very good. Okay. Now again I am revising the same example here. Yes. And sum we have to declare the sum initially, that is 0. Sum क्या होनी चाहिए initially? 0. Yes. Very good. Fine. Okay. Now I'm sharing a same example now. Just wait for code. Okay. Just go downside. Fine. So here just concentrate here. हमने क्या किया यहाँ पे? Again I am revising one part here. That is हमने total number of rows in matrix A, matrix number of columns in matrix A के लिए है. K हम लोगों ने लिया. उसके अंदर क्यों हम लोगों ने लिया वो हम लोगों को देखना है. मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये दो जो चीजें हैं ये देखो. सम मीन्स व्हाट, हम लोग लास्ट में जो एडिशन करते हैं उसके लिए लगेगा. बट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो सम में ऐड होना चाहिए. एग्री एवरीवन? तो उसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, वी आर just stop the screen. Yes. Okay, now I'm going to share again that part. Yes, just concentrate on this example that everyone can clear. ये देखो अभी इसमें हम लोग ने क्या किया है, फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया एंड सेकंड कॉलम. ओके. जो फर्स्ट रो हम लोगों ने लिया है, देखो फर्स्ट रो एंड वी आर टेकिंग द सेकंड कॉलम हियर. इसमें मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कैसे किया, देखो ये वैल्यू मीन वी आर मल्टीप्लाइंग. जस्ट कॉन्सेंट्रेट. ये जो वन वैल्यू है वो किसका है, मान लो हमारे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे. एवरीवन एग्री विद दिस? ये वैल्यू किसकी हो गई, मैट्रिक्स. नाउ आई एम राइटिंग हियर दैट इज द वैल्यू विल बी व्हाट, मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे. सपोज मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको. ये वैल्यू किसकी हो गई है, व्हाट इज द वैल्यू नाउ, दैट इज मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे. जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो किसकी है, मैट्रिक्स जो हमारा ए है, ए ऑफ आई जे. ओके. तो ए ऑफ आई जे की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं. एवरीवन एग्री विद दिस? ये वैल्यू किसकी है, ए ऑफ आई जे. एवरीवन एग्री विद दिस? ओके. ये जो पहला वाला वन हम लोगों ने लिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन नाउ,
ये 1 मतलब कौन है? फर्स्ट मैट्रिक्स का I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0 है। एवरीवन एग्री विद दिस? एग्री और नॉट? एवरीवन क्लियर दिस? मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है सबको? Just concentrate. I am taking here this one value that is A of ij. Okay. Means but हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते वक्त किसका कर रहे हैं? J एंड K के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब हमारे कोड में जो थर्ड लूप था वो कौन सा था? K का था। मतलब को K क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन का। मतलब हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट I मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? के भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आईजे के हिसाब से अभी हम मेरा यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा? जे की जगह पे के। व्हाई? बिकॉज ये देखो अभी मेरा ये फर्स्ट के भी 0 पे पॉइंट कर रहा है, जे भी 0 पे पॉइंट कर रहा है और आई भी 0 पे पॉइंट कर रहा है। तो के क्यों हम लोगों ने यूज किया वो मैं बताती हूँ। के में ये देखो मतलब पहले वाली वैल्यू मैंने 1 सिलेक्ट की। ओके, ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? इसके साथ। मतलब सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो? बी ऑफ मुझे बोलो अभी यहाँ पे आपका जो के है, के क्या है आपका? यहाँ पे आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। मतलब ये जो 1 है, ये हमारे हिसाब से ये जो 1 जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये 1 वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 नाउ? ओके, ये 1 वैल्यू कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं? ये 1 की वैल्यू ये है हमारा, ये आई है हमारा, ये रो है और ये के हमारा कॉलम है। आई होप एवरीवन इज एग्री। तो ये जो वैल्यू है ये कौन सी हो गई? आई भी 0 पे पॉइंट कर रहा है, के भी 0 पे पॉइंट कर रहा है। मतलब ये 1 हम लोगों को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। 2 मतलब अभी मल्टीप्लाई ऑफ बी ऑफ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे? बी ऑफ व्हाट? कौन बताएगा? बी ऑफ यहाँ पे ये जो है ये बी ऑफ, नो डाउट जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम के लिए। सेकंड हमेशा कॉलम के लिए होता है, बट हम लोगों ने अभी देखा उसका रूल, उसका नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट इसका और सेकंड इसका जो नंबर ऑफ कॉलम रोज है वो सेम होता है। इसीलिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है के, यही के यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब हम लोग कैसे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं? ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। क्यों ऐसे किया? क्योंकि ये 1 उठ के किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इसके साथ। समझ में आ रहा है? फिर ये -2 उठ के किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? इसके साथ। मतलब यहाँ पे हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो किसके वाइज कर रहे हैं? कौन बताएगा? यस एनीबडी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं फिर से यहाँ पे आपको रिवाइज करती हूँ सारी चीजें। ये देखो ये 1 है, ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 के साथ। मतलब ये मेरा आई है और के मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। ओके, अभी ये पहला वाला रो जो है वो के को रिप्रेजेंट कर रहा है रोज, और वही रो दूसरे मैट्रिक्स में क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। मतलब इधर का ये रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये रो है और सेकंड मैट्रिक्स का ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। इसलिए वो क्या कर रहा है? ये दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये उठ के अभी देखो ना, ये जो पहले वैल्यू है ये फर्स्ट कॉलम की है, ये -2 है वो सेकंड कॉलम की है, ये वैल्यू एक इसकी है थर्ड कॉलम की है। यही वैल्यू इसलिए के रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज, और सेकंड मैट्रिक्स में यही के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम। समझ में आ रहा है? कॉलम मीन्स वो किसका रोल प्ले कर रहा है? यस एनीबडी एग्री विद दिस? समझ में आ रहा है? सो लॉजिक विल बी ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे। आई होप एवरीवन इज एग्री। नाउ we'll again focus on the coding part. Fine everyone. Now enter the 1 2 3 4. Okay, 4 5 6 7. Fine. In second matrix 2 2. Okay, enter it. 1 2 3 4. Okay, fine. Okay, so just check here for multiplication whether it is right or wrong. For displaying purpose, just give the tab or slash in there so that it will display the properly. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? जब हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं उसको, ओके, डिस्प्ले करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? यस, सम इक्वल टू 0 जो हम लोगों ने किया है, जस्ट चेक देयर,
सम इक्वल टू 0 करो पहले, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई जी इक्वल टू सम किया है, उसके बाद मुझे सम को 0 करना पड़ेगा यहाँ पे कोडिंग फॉर लूप के बाहर, ओके, बिकॉज सेकंड इटरेशन में हमें नई वैल्यू चाहिए थी, ओके, इक्वल टू 0, फाइन, देन वी आर प्रिंटिंग इट, फाइन। आफ्टर दैट नेक फॉर लूप कंप्लीट किया है, यस, सेकंड फॉर लूप, उसके पहले क्या करना है, इफ के पहले, राइट, यस यस, आफ्टर दिस फॉर लूप यू हैव टू डिस्प्ले स्लैश इन, सी आउट स्लैश इन, सो दैट विल डिस्प्ले इन न्यू लाइन, ओके, सी आउट स्लैश इन, फाइन। ये स्टेटमेंट जो इफ के फॉर के, ये जो हमारा है उसके, यस, डिस्प्ले के बाद तुरंत आना चाहिए, इट शुड बी इन, ये दोनों के अंदर आना चाहिए, क्लियर हो रहा है, यस, जस्ट सी आउट इन दिस कर्ली ब्रैकेट, यस यस, वेरी गुड, फाइन, ओके, इसका एल्स क्या आएगा, एल्स पार्ट हम लोग बाद में देखते हैं, एल्स क्या आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगी तो वी कांट डू द मल्टीप्लिकेशन, फाइन, जस्ट रन इट नाउ, yes, enter the value, number of rows 2, columns 2, enter the value whatever you want, 1 2 3 4, either 1 2 3 4, enter second matrix 2, the value will be, yes, 4 5, enter, okay, enter, now the value will be increases, just see that code, okay, fine, हमने नंबर ऑफ रोज कितने डाले थे, 2, और कॉलम कितने डाले हैं, ओके, अगेन वी हैव टू एंटर द वैल्यू नाउ, राइट, लेट्स स्टॉप करो अभी फिर से इसको, अगेन वी हैव टू स्टॉप।